Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टपाशवद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नाम नमस्ते सारस्वती देव गौरवान्विताय निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है एक मिनट 1:12:29 कल हम 28 तक किया था। आज का श्लोक पहला स्कंद 12वां अध्याय श्लोक 29 इति राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञो उपादिश्य विप्रा जातको विदाः विप्रा जातको विदाः लब्धापचितयः सर्वे लब्धापुचिताय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् प्रतिजग्मो सकाम गृहान्। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. So, translation. Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhishthir about the future history of his child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. प्रभु आने तक मैं परपट पढ़ू प्रभु। मैं परपट पढ़ता हूँ और अगर प्रभु ज्वाइन हो, हाँ मुझे खाली बता देना, मैं रुकता हूँ फिर। परपट The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual, but such knowledge aims at perfection of self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matter of both material needs and spiritual salvation. The specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of the knowledge in Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent men, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of the Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dhanur Veda, was also taken up by such intelligent men. And the Vipras were also teachers of this section of knowledge, as were Dronacharya and Kripacharya, etc. The word Vipra mentioned herein is significant. There is a little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in karma kand or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of the transcendence. This department of knowledge is called Jnana Kand, and above this there is the Upasana Kand. The culmination of Upasana Kand is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the Brahmanas achieve perfection, they are called Vaishnavas. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas are Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord. And thus Srimad Bhagavatam, which is a science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. And as explained in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter above the three kandas, namely karma, jnana and upasana. Amongst the karma kand expert, the jataka expert
Vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculation of the time, Lagna. Such expert Jataka Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit and his grandfather, Maharaj Yudhishthir. Such Yudhishthir awarded the Vipras sufficiently with gold, land, villages, grain, and other valuable necessaries of life, which also included cow. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably, as designed in the Vedic procedure. Such expert Vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. Hare Krishna. हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। उनको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज अगर कोई जस्ट अगर पॉइंट्स शेयर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो विल डील विद इट इन द इवनिंग, व्हाटएवर समबडी हैज रेड और अंडरस्टूड वी कैन टेक कपल ऑफ मिनट्स, नहीं तो फिर हम लोग इवनिंग तो देख लेंगे उसको। यस 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 श्योर। तो अगर तो समीर प्रभु, एस समीर प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक्चुअली मैंने इसके ऊपर कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ ओके, पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। हाँ अच्छा अच्छा, तो मैं खाली हिंदी में थोड़ा इसका अनुवाद जो ट्रांसलेशन अनुवाद जो है प्रभुपाद का, तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो जातक या फिर भविष्यवाणी का जो ज्ञान है, ये जो था युधिष्ठिर महाराज को बताया जाता है कि परीक्षित महाराज के बारे में, मतलब वो कितने बड़े राजा होने वाले हैं और उनके सारे जो भविष्यवाणी। तो युधिष्ठिर महाराज जो है फिर उन एस्ट्रोलॉजर को फिर मतलब जो उनका ये है रेम्यूनरेशन, मतलब तभी के जमाने में जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, तो उनको क्या, the Vipras were sufficiently provided, awarded with gold, land, villages, grains and other valuable necessaries of life, which also include cow. तो इन सब लोगों को युधिष्ठिर महाराज ने ये भेंट दिया, सोना, फिर जमीन, फिर विलेज, ग्रेन्स। और आगे यही लिखते हैं कि क्योंकि इन विप्राओं को पूरा उनका जो जरूरत है वो राजा पूरा करता था, तो वो लोग पैसे के लिए इस व्यवसाय को नहीं करते थे, क्योंकि उनको पैसों का उतना जरूरत नहीं होता था। उन जो राजा होते थे वो उनका पूरा ध्यान रखते थे। और यहाँ पे वही ये जो वैदिक नॉलेज के बारे में बताया गया है, तो वेदास आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। तो जो कुछ भी हम आजकल साइंटिफिकली बात करते हैं, एवरीथिंग, ये सारा चीज जो है हमारे वेदा में लिखा गया है। यहाँ पे इवन प्रभुपाद कहते हैं मिलिट्री भी जो साइंस है, धनुर्वेद, हर एक चीज, आयुर्वेद, धनुर्वेद, फिर एवरीथिंग, जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जो नॉलेज है, ये पूरा वेद से ही उत्पन्न होते हैं। तो वेदा ऐसा नहीं है कि कुछ क्या कहते हैं, एक रिलीजियस बुक है जो केवल क्या कहते हैं अपना धर्म प्रचार, उसमें सारा जो जरूरतें भी है जो एक मनुष्य को विथ रिगार्ड्स टू कीपिंग द बॉडी हेल्दी, मतलब हर चीज का नॉलेज उसमें है। एंड एस्ट्रोलॉजी भी एक वैदिक ज्ञानी है, लेकिन आज के आजकल जो क्या कहते हैं लोग नॉर्मली क्या है, पहले के जमाने में एस्ट्रोलॉजी का उपयोग होता था मतलब अच्छे जीवन जीने के लिए, मतलब, लेकिन आज के इसमें इट इज जस्ट टू फाइंड आउट कि मेरा आगे चल के मैं कितना धन संचय कर सकता हूँ, या मैं कौन से फील्ड में ज़्यादा
ध्यान दूं, मतलब ताकि मैं अमीर बनूं। तो आजकल इस ऐसे चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड एस्ट्रोलॉजर भी आजकल पहले जैसे नहीं है, तो बहुत चीटिंग भी करते हैं वो लोग। तो मतलब अगर उनको लगता है कि अगर मैं इसको बढ़ा चढ़ा के बोलूँगा तो ये अगर मुझे अच्छा पैसा देंगे, तो कभी कभी वो लोग वैसे भी करते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि जो 3 प्रकार, लाइक कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, एंड फिर फाइनली जो है वो भक्ति। और प्रभुपाद ब्राह्मण और विप्र के बारे में भी डिफरेंशिएट करके बताते हैं। तो विप्रास जो है उन दे आर नॉलेजेबल पीपल, एंड वो लोग कर्म कांड के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है उनका। डीटी मतलब डेमी गॉड वर्शिप, ये सब मतलब अगर किसी को कोई इच्छाएं है, मटेरियल डिजायर्स, तो वो उनको बताते हैं कि कौन सी देवी का पूजा करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे आपके मनोकामना पूरी होंगे। ये भक्ति के ये भक्ति का और इसका कोई संबंध नहीं है। वो देवी देवताओं का पूजा क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जो ब्राह्मण है वो मतलब ज्ञान कांड प्रभुपाद बताते हैं, तो उनका क्या है, दे गिव यू स्पिरिचुअल नॉलेज, लेकिन वो मिश्रित होता है, वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है। एंड उसके ऊपर है उपासना कांड। एंड जब व्यक्ति इस सारे मतलब भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ के जब वो पूर्ण तरह से भगवान की जब सेवा करने लगता है, देन उस ब्राह्मण के आगे का जो हायर स्टेज है, दैट इज कॉल्ड वैष्णव। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो भगवान की इच्छा के लिए पूरा अपना कार्य करता है। एंड उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि भगवान को संतुष्ट करे, उसको उसके अलावा अलग कोई इच्छाएं नहीं होती। तो जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी प्रभुपाद की कृपा से। तो संक्षेप में ये पर्पट इस तरह से प्रभुपाद लिख, और प्रभुपाद का पर्पट इतना सुंदर है कि कोई भी उसको पढ़ लेगा, सब समझ में आ जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरत माधव प्रभु। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये सडन सेवा ले लिए, थैंक यू। इसमें सिर्फ मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आज का श्लोका में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज के जो पौत्र थे उनका पूरा हिस्ट्री ब्राह्मणों ने बता दिया। तो एस्ट्रोलॉजी को वेदों का एक पार्ट बता रहे हैं प्रभुपाद। और वी कैन अंडरस्टैंड कि मतलब आजकल के ज्योतिषियों को तो मतलब सब पूरा डिटेल बहुत सारा देना पड़ता है, फिर वो कंप्यूटर में डालते हैं, कंप्यूटर से निकालते हैं। तो ये जो ब्राह्मण थे उस वक्त के, यू कैन जस्ट इमेजिन कितने एक्सपर्ट होंगे ये लोग मैथ्स में, कि जैसे भी जन्म हुआ है टाइम देखा उन्होंने और इमीडिएटली मतलब वो कोई चार्ट भी नहीं बनाया उन्होंने, एस्ट्रोलॉजिकल माइंड में उनको कैलकुलेट हो गया एंड ऑन दैट बेसिस उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि ये बच्चा कैसे होगा। तो हाउ एक्सपर्ट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के लिए मैथ्स जो है बहुत तगड़ा होना चाहिए। एंड वी कैन अंडरस्टैंड ये जो सारे ऋषि मुनि थे दे वर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी आजकल के जैसे बाबा लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये एक पॉइंट मुझे इसमें ऐड करना था। और दूसरा था जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे ब्राह्मणस और विप्रस के बारे में, तो विप्र वो है जो इसमें जो वैदिक रिचुअल्स में एक्सपर्ट होते हैं, अब ब्राह्मणस दे आर एक्सपर्ट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी और का कोई पॉइंट है तो वी कैन टेक इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट मुझे एक पॉइंट जब पर्पट पढ़ के याद आ गया कि यहाँ पे जो वेदास में हम लोग जो पढ़ते हैं सर्वम में व वेद्यो करके, तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि वेदास में इतना सब नॉलेज है, एब्सोल्युटली सब कुछ, मतलब आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया और जैसे भी सूरज माधव प्रभु जी बोल रहे हैं,
तो ये पूरा पढ़ के आदमी जो ज्ञानी बनता था, लेकिन वो ज्ञान उनका रहता था कृष्णा कॉन्शियस पे ही, मतलब इतना ज्ञान लेने के बाद भी वो सेंटर उनका जो रहता था कृष्णा रहता था। तो मतलब कृष्णा को सेंटर में रख के अपना ज्ञान का वापर करके कॉमन मैन की भलाई के लिए कैसे यूज करना, वो ये लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया। हरे कृष्णा। हमारे गुरु परंपरा में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज है, वो अभी इस ज्योतिष ज्ञान के बारे में बहुत पारंगत थे, लेकिन उन्होंने कभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर कृष्ण भक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही आगे बढ़ाया, और बहुत सारे भक्तों को प्रभुपाद जी को कृष्ण के पास ले जाने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया, ना कि वो ज्योतिष शास्त्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। और हम लोग ये पॉइंट भी देख सकते कि माता जी प्रभु जी कि हम लोग ने देखा कि वैष्णव के बारे में बताया, और उसमें बताया कि जो प्रगत ब्राह्मण है उनको वैष्णव कहा गया है, और उनका भगवान की प्रेम में सेवा में वो हमेशा संलग्न रहते, और वो हमेशा श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं। तो एक पॉइंट ऐड करना था। और हम लोग देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी ने वो विप्र सब लोगों को, जो विप्र थे उधर, उनको सोना, गांव, मीन्स इतना सारा बहुमूल्य वस्तु उन्होंने दान किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जी मतलब कितने दानशूर थे, ये भी हम लोग देख सकते हैं। हरे कृष्णा। और थैंक यू गोपेम प्रभु, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि वो टाइम पे तो कुछ ऐसा चार्ट वगैरह, विदाउट चार्ट देखिए उन्होंने सब उनका फ्यूचर्स बता दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज को भी परीक्षित महाराज का जन्म होते ही पता चला था कि उनका मृत्यु कैसे होगा, और तब तो भगवान कृष्ण भी स्वयं धरती पर थे उस वक्त। फिर भी उन्होंने भी वो प्रयास नहीं किया कि ये शाप कैसा टल जाए, या ये नहीं होगा तो नहीं तो अगर सामान्य भौतिक लोगों को ये पता चल जाता कि ये बच्चा इतने साल जिएगा, फिर उसकी मृत्यु, तो सब कोई भी साधारण व्यक्ति होगा तो वही करेगा कि ये ना हो सके, उसके लिए प्रयास करेगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के इतने महान भक्त थे कि उन्होंने जो भी भगवान के कार्य है, लीला है, उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, और उन्होंने ये मान लिया कि उनके द्वारा फिर भागवत आएगा, वो तुरंत सब कुछ त्याग देंगे, जो होगा वो होगा आगे जाके, लेकिन वो बदलने की कोशिश नहीं की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी आपने बहुत ये एकदम सही पॉइंट बताया। अभी जस्ट बता रहे थे आप, तो मेरे मन में आ गया कि पांडवों ने एक बार भी कृष्ण से कुछ भी मटेरियल बेनिफिट आज तक नहीं मांगा। मतलब उन पे इतना अत्याचार हुआ, इतने उनके हो गए, जो कृष्ण ने उनको बचाते, जिस तरह से कृष्ण कर रहे थे, वो उन्होंने कृष्ण को पे खुद को कृष्ण पे सरेंडर किया था। जो कृष्ण कर रहे थे उसको मानते जा रहे थे, खुद अपने आप उन्होंने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अच्छे भक्त का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसके ऊपर आज तो जीव पावन प्रभु की वजह से हम लोग को क्या मतलब ऐसी ये ऐसा जो माहौल है वो उत्पन्न हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जाम के क्या बोलते हैं, ओरल एग्जाम के लिए ऐसा करना चाहिए, को सब एक श्लोका लेना चाहिए और उसके ऊपर सबको अपने अपने पॉइंट शेयर करने, तो उससे पता चलेगा कि हम लोग कितनी अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं।